gratitude and thanks to Dr. Lakshminarayan Joshi. He will be the Yogacharya for today's. So, he's the founder, head, Department of Yogic Science, and Dean Student Welfare, Uttarakhand Sanskrit University. So, very soon he will be live with us. So, dear parents, students, and teachers, very soon we'll be having the live demonstration with Dr. Joshi. And it's my sincere request to all my parents, students, and teachers, please unfloor your yoga mat so that you can simultaneously can go live with Yogacharya ji. Also today you are having guest of honor, Ms. Pratibha Singh. He is the Block Educational Officer, Mirzapur District. So both of them, from my bottom of the heart, I welcome you in this virtual ceremony. So without taking much of your time, let's begin today's program with the Father's Day. And once we'll complete the first segment of the program, we'll be going for International Yoga Day. Over to Tulika ma'am. Thank you, Principal Sir. So, audience who are connected to me virtually, fix your seat belts. Get ready for the journey of the segment today. Over to my young MOCs, Bhavya and Harsai. I think Bhavya is facing some internet challenge. Harsai, let me continue with you. Will you allow me? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. जिससे सब कुछ पाया है, जिसने सब कुछ सिखलाया है, कोटि कोटि नमन उस पिता को जिन्होंने हर पल साथ निभाया है, जिन्होंने हर पल साथ निभाया है. A very good noon and Jai Hind to all the respected dignitaries, guests and my dear friends. I, Harsai, feel delighted to master this special and virtual ceremony to celebrate not one but two of the greatest events of June, the International Yoga Day and Father's Day. But before we step into that, stepping into the first fragment of this venture, the Father's Day. How can we refrain ourselves from being delighted from the other reason which makes June special? It's hard to put into words just how much that special man in your life means to you. Whether it's your dad, uncle, brother, grandpa, or anyone who has been a father figure to you, you want to make sure you express your love and gratitude for him, and right way on Father's Day. Someone said very well, you may have thought I didn't see or that I hadn't heard. Life lessons that you taught to me, but I got every word. Perhaps you thought I missed it all and that we had grown apart. But I picked up everything. It's written on my heart. Without you, Dad, I wouldn't be the person I am today. You built a strong foundation no one can take away. It's well said. I have grown up with your values and I am very glad I did. So, here's to you, dear Father, from your forever grateful kid. Without you, Dad, I couldn't be the person my sense of self would chase to me. You have been part of me right from the start. You are my life, my soul heart. A very happy Father's Day from your biggest fan. A father's tears and fears are unseen. His love is unexpressed, but his care and protection remains as a pillar of strength throughout our lives. मेरा साहस, मेरा अभिमान है पिता. मेरी ताकत, मेरी पहचान है पिता. मुझे छांव में रखकर खुद धूप में जलते रहे पिता. मैंने देखा है
एक फरिश्ता, वो है मेरे पिता. Sunbeam Academy not only focuses on scholastic development of a child, but also on the co-scholastic development, making him a holistically developed scholar. अजीज भी है वो, नसीब भी है वो, दुनिया की भीड़ में करीब भी है वो. उनकी दुआ से चलती है जिंदगी, उनकी दुआ से चलती है जिंदगी, क्योंकि ईश्वर भी है वो, तकदीर भी है वो. इस प्रतियोगिता के संदर्भ में मैं अधिक स्पष्ट करने के लिए तुलिका मैम और शालू मैम को आमंत्रित करती हूँ. Thank you. Thank you, Harsai. Wonderful. Wonderful moment today, because my father is also my superhero. And whatever I'm today is because of my loving father. He's really my godfather. Over to Shalu ma'am. धन्यवाद तुलिका मैम. पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है. पिता सृष्टि में निर्माण की अभिव्यक्ति है. पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है. पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है. सनबीम एकेडमी सदैव अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित रहा है. सनबीम एकेडमी द्वारा आयोजित रोशनी आशा की एक किरण श्रृंखलात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत छात्रों की प्रतिभा को मूर्त रूप देने के लिए पितृ दिवस पर अपने भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया. सनबीम एकेडमी की सभी शाखाओं के विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया. यह प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की गई. तुलिका मैम, over to तुलिका मैम. Thank you. Now to start with the pre-primary to class 5th category. The first category, it asked the children to do, the activity was selfie of father and child duo. Here are some captured moments of the father and child in the outdoor or indoor activities. खुशियों से भरा हर एक पल होता है, जिंदगी में सुनहरा कल होता है. मिलती है कामयाबी उनको जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है, जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है. Very true, Shalu ma'am. Now moving on, here are some more captured moments of the father and the child duo, and I know that these moments would be cherished always. Moving to the next segment 6 to 8 activity. Express your feelings to make this day memorable. Tulika ma'am, move ahead, please. महकते घर आंगन की फुलवारी है पिता, बच्चों की बोली और भाषा है पिता. मेहनत की परिभाषा है पिता, ज्ञान का सागर और शब्द कोश है पिता. एक सजीव के लिए, एक संतान के लिए उनके पिता से बड़ा कोई भी नायक नहीं होता है. These are some overflowing words of the children in about 200 words. Coming to the final round, that's the third round, the category goes for the 9 to 12 standard students. They were asked to write self-composed poem, My Father, My Superhero. Here are the list of the names flashed on the screen. The children, wonderfully you had presented your self-composition poems. They were judged by the panel of judges. The names
You can see it's splashed on the screen. But today we are having the first 4 selected, screened out poets, young poets, I do call them. To start with, Arya Chaturvedi. Arya Chaturvedi has bagged the 4th rank, and she is from 9th. Third is Aman Upadhyay. Aman Upadhyay bagged the 3rd rank, and he is from 10th A. The second rank is for Ritvik Tandon. He is from 9C, and the child rewarded for the extraordinary poetic expression is Nil Madhav. He is from 11B1. Now, Shalu ma'am, we are having these students with us today. Can we have some moments shared by them? I would start with Arya. Arya Chaturvedi, will you please share what was your note for your father? Father's Day is one occasion. Come with an opportunity to meet your dad. Feel special and make him realize his contribution in the whole family setup. When child is born, right from the day to him, his father is superhero. Now I'm going to dedicate my poem to my dad. There is a superhero in my life. There is a Superman in my life. But this superhero can't fly. But this superhero can't wear any weapons. This superhero can do anything. He is brave as a Batman. He is strong as a Superman. He is fast as a tiger. He is my favorite superhero. That is my dad. A dad is someone who wants to catch me when I fall and put pain instead picking me up and brushing me off. Encourage me to try again and hold me when I cry. If I have this kind of superhero in my life, then there is nothing which is impossible. Thank you so much, Dad, and I wish you a very happy Father's Day to you. Thank you, Arya. Your words must have touched your father's heart. Really. Now the next is the 3rd prize winner, Aman Upadhyay from 10th A. Aman, we are eager to hear. What are your words? What are your expressions? शुभ मध्याह्न। मैं अमन उपाध्याय कक्षा 10वीं अ सनबीम एकेडमी सामने घाट का छात्र आज आप सभी के समक्ष पितृ दिवस के उपलक्ष्य पर स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है पिता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता मैं अपने और विश्व के समस्त पिताओं को समर्पित करता हूँ। पिता यह एक शब्द है ऐसा जिसमें सारा संसार समाया है, बच्चों के सिर पर जिनकी आजीवन पड़ती शीतल छाया है। माँ देती है प्यार तो पिता हिम्मत दिलाते हैं, जीवन की कठिन राहों को पार करना यही हमें सिखाते हैं। नन्ही नन्ही उंगलियों को पकड़कर चलना सिखलाए और कभी बिठा अपनी पीठ पर घुड़सवारी के मजे कराए। माँ देती है प्यार तो पिता हिम्मत दिलाते हैं, जीवन की कठिन राहों को पार करना यही हमें सिखाते हैं। कभी प्यार से कभी डांट कर सच्ची दिशा दिखाते हैं। माँ की बातें तो हम सदा ही करते रहते हैं, भूल क्यों जाते कि संग हमारे पिता भी तो रहते हैं। माँ जीवन का वरदान है तो पिता भी महान है। धन्य हुए हम सभी जो हम उन माता पिता के संतान हैं। धन्य हुए हम सभी जो हम उन माता पिता के संतान हैं। आप सभी गणमान्य अतिथियों को पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Aman. Your words, your poem was very realistic. It touched our hearts, and sure, it must have touched your parents too. Now, moving on to the second. Sorry to interrupt, Tulika ma'am. Yes, sir. Right. So we have 2 more participants. They are supposed to recite their poem. Both the guests are present. So once these 2 of the students they recite, immediately we will be going for Miss Pratibha Singh is already present, and after that for Dr. Joshi, and we'll be going live with Dr. Joshi.
as a member, formally welcoming our guests. Now I will continue with the poem recitation by our young poets. The second prize winner is Ritik Tandon. Ritik Tandon is from 9C. I can see Ritik is present with his father. Something more interesting from his side. Yes, Ritik? Hello, friends, respected deputy director, principal sir, and all the chief guests. I am Ritvik Tandon of class 9C, Selvi Academy, Samnewar branch. Yesterday was Father's Day. I have dedicated some lines to my father. Here is my father, Mr. Amar Tandon. These lines are for you. How can I ever tell you how much you mean to me? When you are around, the glass always seems to be green. You lighten up my day with your smile that is so bright. Thanks to you, we might not even require the stars at night. Cause the stars are right there into your eyes. Mom fell in love with them is definitely no surprise. You are the most handsome man I have ever met. With a heart just as amazing, Daddy, you are so perfect. Thank you. थैंक यू सन, थैंक यू माय सन। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमेशा खूब तरक्की करे और आगे। Wonderful, wonderful, Ritik. Your presentation, it touched our hearts. Really, we are just missing our fathers also. Now, moving to the first prize winner, Neil Madhav. Neil Madhav is from 11th B1. Neil Madhav, we're eager to Yes, hear ma'am. from you. Jai Hind, everyone. A father is more than 100 schoolmasters. When my father didn't have my hand, he had my back. I don't need an occasion to express myself for how I feel about my father. For the sake of the occasion of Father's Day, I would like to present the poem I wrote for my papa. Here is my papa, Dr. Shyam Pandey. Papa, these lines are for you from the bottom of my heart. When I see that spider, I run and stand behind you, Papa. You can be so annoying sometimes that I want to run away from you. But when I am afraid of something, I'll run to you, Papa. You think that I'm not listening, but I've heard every single word you taught me, Papa. Sometimes you'll not let me buy that phone, but when I am upset, you'll get me that cool video game to make me happy, Papa. When I'm stuck in a problem, you have a solution ready for it, Papa. You are my superhero and I love you, Papa. Wonderful, Neil. Wonderful, Neil. And did your father go through your poem composed for him? Yes, ma'am. Yes. So all the true confessions you did in the lines of your poem. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Now, thank you, the young poets. Thank you, the writers who had flowed out all their emotions. शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। विकसित राष्ट्र की कल्पना पूरे देश को शिक्षित करना है। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का और लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत करने का प्रयास हमारी आज की माननीय अतिथि पीईओ बेसिक शिक्षा मुख्यालय मिर्जापुर की हैं, जिन्होंने अपने प्रयास, प्रतिभा सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने प्रयास के द्वारा लोगों के हृदय में शिक्षा की अखंड ज्योत जलाने का कार्य किया है, जिससे शिक्षा जन जन तक लोगों के हृदय में पहुंच सके। सनबीम एकेडमी द्वारा आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब मैं माननीय अतिथि सुश्री प्रतिभा सिंह जी से आग्रह करती हूं कि वे विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए अपने विचार व्यक्त करें।
afternoon. Good afternoon. दिवस के अवसर पर नवीन अकेडमी द्वारा प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है। इस समय कोरोना महामारी और भी अधिक महत्वपूर्ण हुए। योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का योग से हमारा मन भी प्रसन्न में रहता है। योग करने से हमारे शरीर को शांति और मन तो खासकर बच्चों के लिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए योगा उपलब्ध करना चाहिए। और आपकी एकेडमी के द्वारा बच्चों के लिए जो ऑनलाइन मैं आशा करती हूँ कि करेंगे क्योंकि भारत योग का टीका है। भारत की प्रयासों से तो और भी ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को योग के बढ़ावा दें। लोगों ने जो ये प्रयास किए हैं काफी अच्छा। मैं आशा करती हूँ कि बच्चे इससे काफी कुछ आपके इस ऑनलाइन एकेडमी ग्रुप को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपके विचार विद्यार्थियों को शिक्षा की ओर उन्मुख करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद। ओवर टू तुलिका मैम। Thank you, Shalu ma'am. Tulika ma'am. Now, yes, sir. Dr. is already present. Actually, नेट की प्रॉब्लम बेस हो रही है, हो रहा है। Please go ahead, ma'am. Sir, should we go ahead with the program, the flow of the program? Thank you. Yes, Thank please, you. yes. Thank you. Over to Harsai. Thank you, मैम। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नए स्तर के संतुलन और क्षमता को प्राप्त करना योग है। Now stepping on to the next segment towards the celebration of the day, which has even been prominently recognized by the United Nations too. Yes, we are here to celebrate the 7th International Yoga Day. I remember that year started this campaign. Yoga is very beneficial to our body. It improves strength, balance, and flexibility. It has also been found that yoga lowers heart rate and blood pressure. Yoga is the best way to relax. I would like to add, yoga is that light which, if you can lit once, will never get dimmed. The more you practice, the brighter the flame will be. Now, for the next segment, over to Siddhi and Anushka. Thank you, Harsai. A very good noon and Jai Hind to all the dignitaries, guests, and delegates with great joy and immense exultation. We are profusely elated to extend a warm welcome to one and all present here for the celebration of 7th International Yoga Day. Revitalize your life. Yoga for mind, body, and soul. Recognizing this important role of yoga, this year's commemoration of the International Day of Yoga focuses on yoga for well-being, how the practice of yoga can promote the holistic health of every individual. Asto ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityur ma amritam gamaya. Om. Meaning, keep me not in the phenomenal world of unreality, but make me go towards the reality of eternal self. Keep me not in the ignorant state of darkness,
but make me go towards the light of spiritual knowledge. Keep me not in the world of mortality, but make me go towards the world of immortality of self-realization. Peace. Wishing all a very happy international guest, and to all not eager to know more about yoga and its unsnappable link with the Indian history. Well, I am. So, to suffuse more about the yogic science, hey Siddhi, why don't you introduce us with the yoga and its associated history? हाँ बिल्कुल अनुष्का, क्यों नहीं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युद्ध से हुई है, जिसका अर्थ का है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। आध्यात्मिक चेतना का कार्य योग करता है। योग न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का माध्यम है, वरन यह एक दर्शन है जिसका आयाम सर्वव्यापक है। योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ी कोई सफलता नहीं, योग से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। योग एक अनुशासन है और चित्तवृत्तियों का निरोध है। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया तो कभी कम नहीं होता। Tulika ma'am. Yoga transcends class, caste, and faith. Anushka, please wait. Tulika ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Dr. Joshi is having pre-appointment sharp at 2. Right, so sir. if you can go ahead with his profile. Sure, sir. Yeah, sure, and sir. invite him, please. Yes. Sunbeam Academy welcomes wholeheartedly. It's a warm welcome to Dr. Joshi on this auspicious day of Yoga Day celebration. I'm honored to read the profile of Dr. Joshi. Dr. Lakshmi Narayan Joshi is the Dean, Student Welfare, Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar, and was the founder faculty and the head of the Department of Yogic Science. Dr. Joshi has completed his bachelor's and the master's degree in physical education and yogic science and is a PhD in yoga therapy. He has a tremendous 31 years of experience in yoga and yoga therapy. He has more than 25 research papers published in the national and international journals. He has given more than 800 lectures and workshops in HRDC and ASE and different universities in India. He has conducted several workshops in many European and Asian countries. Here are the glimpses of the different yoga camps organized by Dr. Joshi. He is a man who has organized several yoga camps and has been awarded as the Master of Yoga Therapy by Russia. We are proud to have you today, sir, with us. It is our privilege to have you today with us, sir. स्वयं को बदलो तो जग बदलेगा। योग से सुख में हर दिन निकलेगा। अब मैं माननीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने योगासनों के द्वारा सनबीम एकेडमी की सभी शाखाओं के हजारों विद्यार्थी जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें लाभान्वित करने का कष्ट करें। Joshi sir, please unmute yourself. Okay. Can you hear me, sir? सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Absolutely. Yes. हाँ जी, हाँ जी. I think this is a little difficulty because I am really feeling difficulty to listening all of you. This is the reason I am using this cord to helping me to listen all the beautiful, this wonderful and dynamic event. I'm really very, very happy to see this wow, dynamic, wonderful, incredible event. And I really appreciate the students are doing really the wonder. Again, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग जिस उत्साह के साथ
आनंद के साथ जुड़े हैं वो सदैव बरकरार रहे। और मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी आज विशेष स्थान से आपके साथ जुड़ा हूं। मैं ऋषिकेश में निवास करता हूं और जो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योग है, और आपको जानकर बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में यदि योग गुरु कहीं से भी गए हैं तो उनकी जड़ें ऋषिकेश में हैं। इसीलिए ऋषिकेश को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योग कहते हैं। और आज मैं प्रयास करूंगा कि आपके साथ कुछ शब्द साझा करूं। ये मेरा 7वां व्याख्यान है सुबह से। अभी जापानीज एम्बेसी के साथ था और उसके बाद उससे पहले इलाहाबाद और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ था। तो ये आपके साथ कमिट है, तो आपके साथ जरूर बात करनी है। और बहुत सारे हमारे अतिथि हैं, प्रिंसिपल्स मैडम और जितने सीनियर्स लोग हैं, जितने हमारे टीचर्स हैं, फैकल्टी स्टाफ्स हैं, और जो हमारा मेन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और सीखते हैं, योग के विषय में बहुत सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आपको मिलती है। हमारे सिलेबस में योग लगा हुआ है और मैंने भी उत्तराखंड सरकार के लिए किताब लिखी है 6ठी से 12वीं तक की। ये मेरा बहुत पुराना प्रोफाइल आप लोग पढ़ रहे हैं, करीब 7-8 साल पुराना है, तो वो कोई बात नहीं। तो 6 से 12 तक की गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की मैंने बुक्स भी लिखी हैं, उनमें हमने फिजिकल एजुकेशन और योग को रखा है। तो उसमें भी बहुत मौका मिला और मैं जहां भी किसी भी कंट्री में जाता हूं तो यूथ के साथ जरूर इंटरेक्ट करता हूं, तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपने यूथ के साथ बात करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन के पार्ट हैं और हमारे पास जो आप लोग हमारे पास भेजते हैं तैयार करके, ज्यादा मेहनत आप करते हैं, हम तो कम मेहनत करते हैं, क्योंकि स्कूल में बहुत बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत बहुत करेक्शन होते हैं और तब हमें तो थोड़ा सा तैयार बच्चा मिलता है। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दिस इज नॉट अ इवेंट फॉर द वन डे, प्लीज कीप योर माइंड, दिस इज नॉट ओनली द डे फॉर योगा, दिस इज एवरी डे इज द डे ऑफ योग। दिस इज द थिंग रियली आई वांट टू शेयर विद यू। हमारा प्रत्येक दिन योग दिवस है, हमारा हर दिन योग दिवस है। अकॉर्डिंग टू दिस पैंडेमिक, इस पैंडेमिक ने हमें सिखाया कि हमारे जो हमारी प्राच्य विद्याएं थी, जो हमारा जो ट्रेजर था, जो ओल्ड ट्रेजर था, उसके अंदर बहुत बहुत सारी चीज छुपी हुई हैं। जैसे आयुर्वेद का खजाना है, योग का खजाना है। और इस पूरे पैंडेमिक ने जो भी आप देखेंगे रिकवरी रेट ड्यू टू आयुर्वेद एंड योग, बहुत ही बड़ी सफलता हमें मिली है। और गवर्नमेंट ऑफ आयुष, जो भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट हमारा है, उसने 99% कोविड-19 के पेशेंट को ठीक करके दिखाया कि योग और आयुर्वेद के माध्यम से इतना ज्यादा लाभ हमें मिल सकता है। तो कहने का मतलब है, कुछ छात्र जब योग को करते हैं तो सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन और योग नंबर लाने के लिए है, पास होने के लिए है, लेकिन इस पैंडेमिक में आप सब लोगों ने देखा कि ये जीवन को बचाने के लिए है। ये मार्क्स, ये एक ऐसी विधा है, अगर आप इन्हें सीखते हैं तो आप वो सब चीज कर सकते हैं, अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि इसे एक किताबी पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना है, नियमित अपने अभ्यास को करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि जैसा मैंने आपको कहा, योग करने से होता है, योग अपनाने से होता है और हमें इसे करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जनरली हमारे छात्र छात्राएं, परिवार, अध्यापक, सभी लोग एक गलती करते हैं कि अगर वो सुबह देर से उठे तो वो अपना वॉक, फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दे, बोले आज देर होगी, कल से करूंगा। ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात होती है। आप कभी भी उठते हैं, आपको अपनी एक्टिविटी उसी तरह से करनी है जैसे आप नाश्ता करते हैं, आप अपनी और दिनचर्या का पार्ट करते हैं, वैसे इसे कंपलसरी एक्टिविटी बनाना है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मेरे साथ मेरे डेमोन्स्ट्रेटर हैं आकांक्षा वर्मा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज करने का दिन है, सुनने का दिन तो बहुत सारे हैं, हम और दिन बात कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ
हम डायनामिक पार्ट जो कुछ टेक्निकल ट्रेडिशन टेक्निक है वो हम आपसे साझा करें, जो हमारे पैंडेमिक को देखते हुए काम आ सकती है। Dr. Joshi, it's around more than 2,000 students are live with you, and the parents, they will be doing this live yoga with you through because so nice. you are live in the Facebook also. जी, thank you very much. I just wanted to switch on my shift on my camera first, so you can see the demonstrator. One second. How to switch this one? Okay, 1 second. Just I'm switching the camera. Okay, now we are ready. हम लोग तैयार हैं आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर विद यू द बेसिक्स ऑफ योगा नोन एज अ पवन मुक्तासन गुरु। दिस इज अ वेरी बेसिक्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। हम जो अभी करने वाले हैं ये बहुत ही बेसिक टेक्निक हैं जो हम सबके लिए हैं। जैसा मुझे बताया गया है कि हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ये पवन मुक्तासन समूह है जो हम इसे एंटी रूमेटॉइड अर्थराइटिस समूह कहते हैं, जो हमें अर्थराइटिस से बचाता है और फ्लेक्सिबिलिटी को देता है। इसके लिए हम लोग दंडासन में आ जाते हैं आराम से और फिर धीरे से अपने दोनों पंजों को आगे की ओर झुकाएं। 1 2 3 4 5 6 चेंज 1। अच्छा, इस टेक्निक को मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ जॉइंट मूवमेंट की तरह देखते हैं। ये जो टेक्निक अभी आप जो देख पा रहे हैं, दिस लुक्स वेरी सिंपल, लेकिन वी आर यूटिलाइजिंग फॉर स्पेशली विद फॉर वेरिकोज वेन्स। ये हम लोग यूज करते हैं वेरिकोज वेन्स के लिए। अगर आप देख पा रहे हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडी को थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं ऊपर। तो आपको जो हील में दर्द होता है, लंबे समय तक जो टीचिंग स्टाफ है खड़ा रहता है, और फीमेल में स्पेशली तो वेरिकोज नीली नसों का गुच्छा आ रहा है और आप खड़े नहीं हो पाते, बाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप देखिए थोड़ा सा एडी को उठाना है। 3, ये फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए तो है ही, लेकिन वेरिकोज वॉल्व को एक्टिव करता है। 4 5 6, ठीक है। सिंपल रोटेशन 1 2 3 4, change 1 2 3 4, change नी के लिए 1 2 3 4, change 1 2 3 4, change Ardha Padmasan। 1, easily stretch down. 2, lift up. 3 4, change बहुत आराम से। 1 2 3 4, नाउ चेंज। ये मैं आसन बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं सबके लिए। दिस वेरी कॉमन वन नोन एज अ बटरफ्लाई पोज। हमें फिजिकल एक्सरसाइज में हम लोग करते हैं ऐसे सिंपली। ये आप लोग करते रहते होंगे आराम से, ऐसे पैर मिला के आराम से हिलाते होंगे। ये हमारे पेल्विक के लिए, नी के लिए, क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जब हम इसमें रुक जाते हैं तो ये हमारा भद्रासन बन जाता है। पोजीशन, ये जो पोजीशन है दिस इज नोन एज भद्रासन। और भद्रासन में आपने देखा होगा ट्रेडिशनल में हमारे गांव देहात में जो मोची होते थे, शू मेकर होते थे, अपना जूता इसके बीच में डाल के सिलते थे। तो उनको आपने देखा यूरिनरी ट्रैक का कोई डिसऑर्डर नहीं होता। तो इसलिए ये जो अभ्यास है हमारा मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको नियमित अभ्यास हम लोग करते हैं तो फीमेल में होने वाले बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनसे आप बच सकते हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं।
और मेल फीमेल दोनों यदि इसे नियमित करते हैं तो उन्हें नाभि के नीचे के कोई डिसऑर्डर नहीं होते। तो इसे कंपलसरी नंबर 1 की तरह हम कहते हैं हमेशा, आप इसे रेगुलर कीजिए, रेगुलर। चेंज मेरुदंड वक्रासन, मैं बिल्कुल सिंपल टेक्निक बता रहा हूं आपको जो आप पेरेंट्स भी कर सकते हैं। 1, इजीली क्रॉस योर हैंड लेग, इनहेल, लिफ्ट योर हैंड अप, 2, एक्सेल, 3, लुक बैक। ये हमारा स्पाइनल ट्विस्टिंग का सिंपल पोज है, जैसे आप कर पा रहे होंगे आराम से। इसमें अगर आप देखें ये जो पोजीशन है हमारी थाई को हमारा स्टमक दबा रहा है, इसीलिए हमारे पेनक्रियास को एक्टिव करता है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है हमारे लिए, डायबिटीज मेलाइटस को दूर करता है, ओबेसिटी को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साइड चेंज 1, 2, 3, 4, change 1, 2, 3, 4, look back, maintain कीजिए, change, वापस आइए, रिलैक्स, धीरे से आराम से सुखासन में बैठिए और स्कंद चालन का अभ्यास, दोनों हाथ कंधों के ऊपर। और ये इस पैंडेमिक के लिए आपने देखा होगा सभी डॉक्टर्स ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया, टाइडल वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेशन को ठीक करने के लिए स्कंद चालन, गहरी सांस लेते हुए दोनों एल्बो को मिलाते हुए ऊपर लेके जाना है। इनहेल और धीरे से एक्सेल, इनहेल और जब डाउन करेंगे तो एक्सेल। ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। इनहेल, एक्सेल, डायरेक्शन चेंज, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। ग्रीव चालन, गर्दन के अभ्यास 1, 2, दाएं बाएं देखिए, 3, 4, चेंज 1, 2, 3, 4, change forward bend 1, 2, 3, 4, रिलैक्स, आराम कीजिए। ये अभ्यास हमारे पवन मुक्तासन समूह है, सीरीज ऑफ पवन मुक्तासना है। ये हमारे ज्वाइंट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, इसीलिए एंटी रूमेटाइड अर्थराइटिस है, इसका अभ्यास अर्थराइटिस को दूर करता है। यदि आप नियमित करेंगे तो कोई स्टिफनेस आपको नहीं होगी और आपको अर्थराइटिस की समस्या नहीं होगी। अगला अभ्यास हमारे बच्चों के लिए स्पेशली है, ये है बड़ा डायनामिक अभ्यास जिसे हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। ये बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इसे पसंद भी करते हैं क्योंकि डायनामिक पार्ट ऑफ योग है। ये 12 आसनों से मिलकर बना हुआ है और ये सेट ऑफ आसनास है जिसे हम परफॉर्म करते हैं जब सूर्य उगता है तब, या बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि जब आप सूर्य के सामने करें ताकि विटामिन डी भी हमें मिल जाए। इसमें पहला आसन है जिसे हम प्रणाम आसन कहते हैं। देखिए, प्रणाम आसन की जो थ्योरी है वो मैं थोड़ी सी आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, वो खूब नमस्कार करते हैं। देखिए, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और ये 5 उंगलियां शरीर में पंच महाभूत की घोतक है, यानी जो पंच महाभूत हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। हमारा अंगूठा अग्नि, इंडेक्स फिंगर अग्नि वायु, आकाश मिडिल फिंगर, पृथ्वी रिंग फिंगर और जल हमारी लिटिल फिंगर। तो 5 उंगलियां हमारे पंच महाभूत को प्रदर्शित करती हैं। तो हम ऐसा मानते हैं जब शरीर में पंच महाभूतों की आपूर्ति ठीक से नहीं होती या ये अव्यवस्थित हो जाती है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इस आसन के माध्यम से, जिसे हम प्रणाम आसन कहते हैं, ये पंच महाभूत शरीर में पूर्ण होते हैं। दूसरा एक प्रणाम की मुद्रा है जो हमारे अहंकार को नष्ट करता है। अहंकार सभी रोगों का कारण है। जितना हमारे अंदर अहंकार होगा उतना हमारा उच्च रक्तचाप होगा, उतनी द्वेष ईर्ष्या हमारे अंदर होगी, उतने प्रकार के रोग हमारे अंदर होंगे। तो प्रणाम करने से हम, आप जैसा कि पढ़ते हैं, दीर्घायु होते हैं,
विनम्रता आती है जो हमारे कई रोगों को दूर करती है। तो ये पंच महाभूतों की पूर्ति करने वाला, अहंकार का नाश करने वाला अभ्यास है। अगर एनाटॉमिकली मैं आपसे बात करूं तो जब आप इसे थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो ये स्टेनम को, जो हमारा चेस्ट की जो हड्डियां हैं, जो स्टेनम है, उसको प्रेशराइज करता है, जिससे इंटरकोस्टल मसल जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं वहां तक ये प्रेशर जाता है। तो ये प्रणामासन महत्वपूर्ण है, इसको कभी हम लोग लाइटली ले लेते हैं। 2 है हस्त उत्थान आसन, सांस भरते हुए पीछे मोड़िए, एच पसुल यू कैन। 3 पादहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। 4 अश्व संचालन, हॉर्स राइडिंग पोज। 5 पर्वतासन, माउंटेन पोज, ब्रीथ आउट। 6 hold the breath and maintain the pose. Ashtanga Namaskar, 2 knees, 2 toes, 2 palms, forehead and chest on the ground. ये है Ashtanga Namaskar. Now inhale Bhujangasana, snake pose. Exhale Parvatasana. Now right leg forward in between the hands, Ashwa Sanchalan. Now Padhastasana, both leg together. Hastuttanasana, inhale. And Pranamasana, exhale. Relax. ये अभ्यास हमने अभी देखा, ये है सूर्य नमस्कार का अभ्यास. This is known as a complete workout for whole the physical and internal system, especially mobilizing the whole the physical body. ये हमारे को ये तो काम करता है, massaging the all the internal glands, हमारे थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास, जितने हमारे ग्लैंड्स हैं उन सब की मसाज करता है, उनसे सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स को शरीर में व्यवस्थित करने का काम सूर्य नमस्कार करता है. इसीलिए हम लोग इसे ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, पेनफुल पीरियड्स के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए यूज में लाते हैं. जो लंबे समय से स्किन डिसऑर्डर से पीड़ित हैं उनको हम इसके ज्यादा रेपिटेशन बताते हैं. ओबेसिटी के जो पेशेंट हैं, जो ओबीज हैं, मोटापा बहुत आ रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और फ्लेक्सिबिलिटी को देने वाला है. आप इसका दूसरा सेट भी कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम वो नहीं कर रहे हैं. अगला अभ्यास, लेट जाइए. देखिए, नहीं, खड़े रहिए. एक अभ्यास मैं छोटे बच्चों के लिए जरूर बताना चाहूंगा, छोटे बड़े सबके लिए. इसका नाम है ताड़ासन. दिस वेरी सिंपल आसन. इंटरलॉक योर बोथ द हैंड्स. दोनों हाथों को लॉक कीजिए. 1, breathe out and stretch downward. Now 2, inhale and stretch upward. ये आपने करना है. इसका नाम है ताड़ासन. जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, दिस इज एंटी स्ट्रेस. जब आप लोग स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, लंबे समय तक कंप्यूटर में काम करते हैं, कब्ज को दूर करना हो, तनाव को दूर करना हो और छोटे बच्चों में लंबाई को बढ़ाना हो, उनके लिए आसन बहुत लाभकारी है. 2, breathe out and come down. Again 3, inhale and 4, exhale. एक बैलेंसिंग पोज हमारे बच्चों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस जो होता है वो दिखाता है कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, दिमाग की चंचलता को दिखाता है. जितना बैलेंस होता जाता है उतना मन शांत होता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटा छोटा बच्चे होते हैं वो बैलेंस नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे वो लोग अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर पाते हैं, इमोशंस को, तो धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छा बैलेंस कर पाते हैं. इसके लिए वृक्षासन है, ट्री पोज. दिस वेरी सिंपल आसन. 1, ये कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए है, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए है. 2, मन को शांत करता है, तनाव को दूर करता है, एकाग्रता को बढ़ाने का काम करता है. वृक्षासन, जब शरीर की स्थिति वृक्ष के समान हो जाती है तो वो वृक्षासन हमारा कहलाता है. 2 डाउन, रिलैक्स. पैर बदलकर भी आपको इसे करना है, मैं नहीं कराऊंगा. आप लेट जाइए. 2 बजे से मुझे दूसरी जगह ज्वाइन होना है सर. मैं थोड़ी जल्दी से आपको बता देता हूँ और टेक्निक्स. अभी मेरे पास है 7-8 मिनट. देखिए, इसके बाद में आप सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं हमारे ट्रेडिशन में, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारी वैदिक परंपरा में जो हमारे गांव देहात की जो
ग्रामीण परंपरा है वो बहुत ही सशक्त थी। वो इतनी साइंटिफिक है। आप कोविड-19 की बात करें तो आज सभी लोगों ने भारतीय सनातन संस्कृति के दाह संस्कार को सबसे ऊपर माना, कहा कि यही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम इसे समूल नाश कर लेते हैं। और ये प्रक्रिया हमारी वैदिक परंपरा है, बहुत समय से चली आ रही है। और उसके बाद स्नान की परंपरा, जिससे हम प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। तो आप ये लगा लीजिए, सनातन संस्कृति में हमेशा टॉयलेट, और अभी भी गांव देहात अपने जाते होंगे तो टॉयलेट सबसे बाहर होते हैं और दरवाजे के साथ नलके होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब घर में जाता है तो हाथ पैर धोकर जाता है। तो ये सब हमारा सैनिटेशन का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। और जिसके वहां डेथ हो जाती है तो उसको हम आइसोलेशन में भेजते हैं, 13 दिन तक वो अलग रहता है, बाल उतारता है, अलग रहता है। तो ये आइसोलेशन हमारी ट्रेडिशन में है। इसको सिखाने की WHO हमें जरूरत नहीं है, हम लोग तो खुद ही जानकार है, हमारी सनातन संस्कृति का पार्ट है। तो वो सारी चीजें कि उस आदमी को अलग कर दीजिए, उस परिवार को थोड़ा सा आप देखिए, उसकी शुद्धिकरण गौमूत्र के माध्यम से या किसी माध्यम से करते रहते हैं, चाहे मंत्र हो या किसी प्रकार के। तो ये प्रक्रिया हमारी बहुत पुरानी है। उसी प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मेरे छोटे बच्चे हैं, हम लोग इनके लिए बहुत काम कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए। इन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेल फीमेल सबको, कि एब्डोमेन लेवल को हमेशा एक्टिवेट कीजिए। अगर आप इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कीजिए, तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होगा। तो उसके लिए हमारे पास है उत्थान पादासन। दोनों पैरों को मिलाइए, गहरी श्वास लेते हुए दोनों पैरों को जमीन से 6 इंच का ऊपर उठाइए। ये सारा प्रेशर आपके नाभि में जाता है और योग में इस स्थान को कंदयोनि स्थान कहते हैं। ऐसी संकल्पना है कि 72,000 नाड़ियां यहां से निकल के पूरे शरीर में गई हैं। 2 डाउन। अगर आप देखेंगे ये नाभि प्रदेश वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो भी अमेरिकल कॉर्ड से ही कनेक्ट होता है और उसका पूरा नरिशमेंट माँ के गर्भ में 9 महीने तक इसी के माध्यम से होता है। तो नाभि हमारे लिए ऊर्जा का केंद्र योग में मानी जाती है और पेट को सभी बीमारियों की माता कहा जाता है। और आप देखेंगे कि इस स्थान में रिबकेज के बाद यहां से नीचे सिर्फ कोई मांसपेशी के अलावा कोई हड्डी नहीं है, तो यानी फिर सीधे पेल्विक है। तो यानी ये रेक्टस एब्डोमेन मसल को आपको टोन अप करना पड़ेगा। जितना आपका पेट बाहर होगा आपका मेटाबॉलिज्म उतना स्लो होगा। तो इसीलिए आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उत्थान पादासन का अभ्यास कर सकते हैं, जो आपकी पाचक अग्नि को प्रदीप्त करता है, मोटापे को कम करता है और पेट के आंतरिक अवयवों की मालिश करता है। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए और हम सभी के लिए है अगला अभ्यास, जिसे हम सर्वांगासन कहते हैं। 1 2 90 डिग्री, 3 120 डिग्री एंड 4 लिफ्ट अप। देखिए, सर्वांगासन के विषय में जो जानकारी हम सब लोगों को है, सब लोग शीर्षासन को कभी कभी हम लोग क्वेश्चन आता है फिजिकल एजुकेशन में तो ऐसा बता देते हैं कि योग का सर्वश्रेष्ठ आसन शीर्षासन होता है, क्योंकि ये सिर का आसन है, ये शीर्ष पे रखा आसन है। लेकिन आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि शीर्षासन और सर्वांगासन ये लगभग 175 साल से पुराने नहीं हैं। उससे पहले का प्रचलन जो हमारा है वो विपरीत करणी मुद्रा था, ये उसके मॉडिफिकेशन है। तो विपरीत करणी मुद्रा, विपरीत माने उल्टा करना, विपरीत सिर नीचे करो पैर ऊपर करो, उससे मॉडिफाई होके ये आसन बने हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमारा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे शरीर को के ब्लड को नीचे की तरफ खींचता है, इसमें ये उल्टा हो जाता है। तो ये हमारे शरीर में हमारे मस्तक की तरफ रक्त के प्रवाह को तेज करता है, वेरिकोज वेन्स। अच्छा, मैं बड़ा आश्चर्य की बात बताऊंगा, हम लोग कॉन्स्टिपेशन में इसको यूज करते हैं, कब्ज को दूर करने में से यूज करते हैं, क्योंकि हम जाते हैं जब पेट सूख जाता है वहां खून का प्रवाह नहीं होता, तो भयंकर कब्ज हो रही है, आदमी परेशान है, कायम चूर्ण खा के विज्ञापन आ रहा है। तो आप इस तरह का अभ्यास कीजिए जिससे सर्कुलेशन आपके इंटेस्टाइनल एरिया में हो जाए, आपको लाभ मिलेगा। थायराइड पैराथायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा है, आईसाइट की पावर को बढ़ाने के लिए अच्छा है। -2.5 से ज्यादा हो जाए तो आप अपने किसी चिकित्सक के निर्देशन में इसे करें। बहुत ज्यादा वीक आईज को इसे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करके इसे सीखना चाहिए। बालों को काला रखना है, आंखों के नीचे के डार्क सर्कल को कम करना है और झुर्रियों को कम करने का काम करता है। हार्ट और लंग्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हलासन आपने करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, हमारे लिए। ये स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को एक्टिवेट मतलब बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि की मालिश का काम करता है। और आप सभी लोग जानते हैं
कि अगर आप अपने बोन्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं या अपने मोटापे को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको थायरोक्सिन का प्रॉपर एप्रोप्रिएट अमाउंट चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो थायराइड की समस्या से बचने के लिए हम लोग कहते हैं इसका कॉम्बिनेशन आप जरूर कीजिए, 2 डाउन एंड कम बैक। और इसके बाद इसका एक काउंटर पोज है जो आप सबको हमें जरूर करना है इसके बाद, वो है फिश पोज, क्योंकि अभी हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि दब गई थी। तो अगला अभ्यास फिश पोज है, सरल मत्स्यासन। इस तरह से आप अपने गर्दन को वापस ऐसे कर लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। ये काउंटर पोज है, इसका अभ्यास आपने करना है, जितना उनको करना है उतना इसको भी करना है। और ये अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत अच्छा है, छाती की मांसपेशियों का विस्तार करता है। रिलैक्स। अगला अभ्यास हमारे टीचर्स के लिए, स्पेशली लोअर बैक पेन से सभी परेशान रहते हैं, लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है या घंटों बैठना पड़ता है, तो उनके लिए है पेल्विक लिफ्टिंग, जो हमारा सेतुबंध आसन पोजीशन। दोनों पैरों को मोड़िए, गहरी सांस लेते हुए कमर को धीरे से ऊपर उठाइए, 1 और धीरे से वापस 2, फिर कीजिए 3 एंड 4। ये हमारा बहुत ही अच्छा अभ्यास है निचली कमर के रोग को दूर करने के लिए। तो इसके लिए हम स्लिप डिस्क और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में से यूज करते हैं। टर्न, और 2 आसन और मैं आपको सिखा रहा हूं, दिस इज द लास्ट वन। बहुत समय होने वाला है, आपका भी कार्यक्रम बहुत लंबा है अभी। एक है भुजंग आसन, इसे जरूर करिए। ये हम लोग कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अपनी हील को मिला के रखिए और गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों से को प्रेस करते हुए छाती को धीरे से उठाइए, कोहनी अंदर की ओर। ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक पेन, साइटिका पेन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इसे परफॉर्म करते हैं नियमित रूप से तो आपको ये कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास हमारे लिए है। 2 डाउन, एक बार और 3, 4 डाउन। अगला अभ्यास निचली कमर को शक्तिशाली बनाने के लिए है, जो है शलभासन का अभ्यास। 1, गहरी सांस लेते हुए जमीन से 6 इंच पैर को ऊपर उठाएंगे। 2 डाउन, 3, पैर बदलिए, 4 डाउन। एक अभ्यास में ये छोटे लड़कियों और लड़कों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारे स्कूलिंग के जो बच्चे हैं, इनके लिए पेल्विक को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, कमर के दर्द को दूर करने के लिए और फीमेल प्रॉब्लम से बचने के लिए वेरिएशन ऑफ शलभासना है। इसमें धीरे से एक पैर को उठाना है, 1, जितना उठा सकते हैं, और दूसरे पैर से धीरे से सपोर्ट लगा लेना। आप देखिए, दिस वेरी सिंपल लुक्स डिफिकल्ट। ये आपका वेरिकोज वेन्स के लिए, फीमेल के जो पेनफुल पीरियड्स है उनमें बहुत ज्यादा हम लोग यूज कराते हैं, कामयाब है। अगर आप नियमित करेंगे निचली कमर का दर्द नहीं होगा और इस तरह की बच्चों को कोई दिक्कतें नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, बच्चों के लिए जरूर करना चाहिए। रिलैक्स। शशांक आसन आप सब लोगों के लिए जो तनाव हो जाता है उसे दूर करने के लिए। धीरे से वज्रासन में बैठिए, अपने पैरों को खोलिए और धीरे से आगे झुक जाइए। यह है शशांक आसन। रैबिट पोज, वापस आइए। तो ये जो अभ्यास आप देख रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। एक अभ्यास में अकॉर्डिंग टू दिस पैंडेमिक आपसे शेयर करना चाहता हूं। उस अभ्यास का नाम है नेति। नेति क्रिया मैं आपसे कह रहा हूं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे नोजल स्प्रे की बात हो रही है और रोज हम विज्ञापन देख रहे हैं कि नोजल स्प्रे और कई तरह के नोजल स्प्रे आ रहे हैं। उनसे हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई इस पैंडेमिक में हमें दिक्कत ना हो। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं और 2 मिनट के लिए मैं अपने माइक को हो सकता है कि आपको सुनने में दिक्कत आए। इसके लिए अपने गर्दन को थोड़ा सा आगे झुकाइए और धीरे से अपने गर्दन को झुकाने के बाद मुंह से सांस लीजिए
और इसे धीरे से अंदर डाल दीजिए। ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है और आप देख रहे हैं ये अभ्यास हमारी नोजल कैविटी को बिल्कुल क्लीन कर देता है। आप देखिए आराम से। और ये कोई कठिन नहीं है, ये कोई कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है। आप इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपके पास लोटा नहीं है तो हम लोग तो इसे बिना लोटे के भी कर लेते हैं। इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूं और आज मैं लगातार इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। ये बहुत बेनिफिशियल है, बेनिफिट देने वाला है। आप बिना जल नीति के भी ये नीति कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं आराम से। और ये आपकी पूरी नोजल कैविटी की सफाई करता है और साथ ही साथ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है। मुझे लगता है कि समय हो गया है। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। मुझे दूसरे जगह भी ज्वाइन होना है सर। कोई क्वेश्चन हो बच्चों का जरूर पूछिएगा प्लीज। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। इस वैश्विक आपदा के समय आपके द्वारा सिखाए गए योगासन हमारे विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को दूर करके ध्यान केंद्रित करने में अवश्य सहयोग करेगा। आपका बहुत बहुत आभार। मैडम, मैं भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर निशांत जी को। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो लगातार संपर्क में थे और उनको कमिट कर दिया था कि करना है तो हमने कहा जरूर आना है। तो मैं इस मंच के माध्यम से निशांत जी का, पूरे आपके परिवार का, प्राचार्य का, फाउंडर डायरेक्टर्स का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी, अभी थोड़ा सा आज जल्दी हो गया है, किसी दिन आपके बच्चों के लिए स्पेशल एक पैकेज में लेकर आऊंगा। जैसे टीचर्स के लिए मैंने एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टीचर्स के लिए एक छोटा सा एक टेक्निक है, थोड़ा सा नीचे। ये टेक्निक क्या है, आप बैठे बैठे ऑफिस में कर सकते हैं। बिकॉज आपको क्या होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, तो आप आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है इन्हें करते हैं। ये एडवांस लेवल में ये भी काम नहीं करती, तो इसके लिए हमने बताया आप ऑफिस में ये कर सकते हैं। ये प्रणाम आसन का ही वेरिएशन है। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्वाइन कीजिए और इसे चेस्ट के पास रखिए, ऊंचा मत रखिए, ठुड्डी से नीचे चेस्ट के पास। अब इसे 7 सेकंड तक पूरी ताकत लगा के खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7। आप देखेंगे आपकी गर्दन बिल्कुल हल्की हो गई है, क्योंकि स्टेनम से सर्वाइकल तक फ्री कर देता है, तो फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी आ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं लास्ट मिनट सेकंड में बताऊंगा। दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक नोन एज अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट भी आप अगर देख पा रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कमर में दर्द है तो आपका कहीं ना कहीं अलाइनमेंट इस तरह से मिलेगा, एक पैर छोटा एक बड़ा। देख पा रहे हैं क्या? ऐसा होगा जरूर। यस सर, यस सर। और जब हम इसे अलाइन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा लगभग बराबर। आप देख पा रहे हैं, बराबर हो गया। थोड़ा पीछे से दिखाओ, एक में छोटा बड़ा और फिर बराबर। तो ये अलाइनमेंट है। तो whenever you are suffering with the lower back pain or cervical lumbar spondylitis, so you are just missing the alignment. Because of that, right away you are suffering from the severe pain. So what we are doing right away, we are putting you in the appropriate alignment, and you are in the 2 or 3 minutes, your pain is finished. So this is the things known as the Nadi Vigyan techniques, and this is my specialization. This is the one thing. तो ये जब आपका अलाइनमेंट आउट होता है, मैं स्पेशली 2 सीनियर के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए, ये हमने अपने रिसर्च से डेवलप किया है नाड़ी विज्ञान को। आपका अलाइनमेंट, जैसे हमने इसमें हम दर्द को दूर कर लेते थे, तो वी आर हाईली अप्रिशिएटेड बाय द ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब जगह जाने का मौका मिलता है। मैं मॉस्को मेडिकल यूनिवर्सिटी में, शंघाई में मेडिकल यूनिवर्सिटी, सब जगह, चुने कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में, सब जगह मैं जाता हूँ वर्कशॉप्स के लिए। तो हमने ये देखा, दर्द
जो भी फीमेल्स थे जिनको दर्द लोअर बैक पेन 8 ईयर्स से ज्यादा हो गया, उनका यूट्रस रिमूव हो रहा था। हमें ये क्या बात हुई कि भाई लोअर बैक पेन से यूट्रस का क्या कनेक्शन है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से वीक आईसाइट का, कार्डियक का, स्नोरिंग का क्या कनेक्शन है। तो फिर हमने इसमें और रिसर्च किया, तो डेवलप किया दिस इज सम ट्रूथ कि अगर आपका थोड़ा पास ले आइए L4 L5 S1 जिसे हम लो बैक पे कहते हैं, यहाँ कोई दर्द है तो आपके निचले ऑर्गन्स में सप्लाई करता है। दिस इज अ चार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर आपका सर्वाइकल में कुछ है तो वो आपकी आईज, लंग्स, हार्ट और लीवर को इफेक्ट कर सकता है। तो ये जो चार्ट आपका है, ये आपका डिसअलाइनमेंट आपके नहीं रखो, डिसअलाइनमेंट आपके इन सब ऑर्गन्स में भी सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हमने ये मेरुशोधन क्रिया बनाई जिसके माध्यम से हम इसे फ्री फ्लो करते हैं। इस पर फिर किसी दिन चर्चा करूंगा बस, लेकिन अभी आज के लिए इतना। एक अलाइनमेंट आपके अंदर के किसी डिसऑर्डर का भी कारण हो सकता है। आप समझ रहे हैं? जैसे एक गाड़ी का अलाइनमेंट खराब होता है तो टायर खत्म हो जाते हैं, स्टीयरिंग बहुत आवाज करता है, वैसे ही अगर आपका अलाइनमेंट आउट है तो दिस कैन बी अ कॉज ऑफ सो मेनी डिसऑर्डर्स, और आप उसका इलाज करा रहे हैं लेकिन आपका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, यानी आपका ब्लड सप्लाई, आपका नर्व सप्लाई और आपका प्राणिक एनर्जी सप्लाई ऑर्गन्स के पास नहीं है, इसलिए आपको डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं स्पेशली छोटे बच्चे से कहता हूं सीधे बैठिए, इनके जूते एक तरफ से नहीं घिसने चाहिए। आई रिक्वेस्ट ऑल द प्रिंसिपल्स एंड द टीचर्स, इनके शूज को चेक कीजिए, एक तरफ से इनकी एड़ी नहीं घिसनी चाहिए। ये बच्चे गलत हैं, इनका अलाइनमेंट गड़बड़ है, ये इनको बहुत फीमेल में इतने साल पेनफुल पीरियड इन बच्चियों को होंगे, ये परेशान हो जाएंगी। लड़कों को इतनी दिक्कत होगी आगे भविष्य में, ये परेशान हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी चीज ऐसी हैं, इनके शोल्डर्स, इनका जूते का तला, ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो इनकी बड़ी बीमारी की तरफ इंडिकेशन करती है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सनबीन एकेडमी के सभी डायरेक्टर्स का, प्रिंसिपल्स का, स्टाफ्स का, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अभिभावक हैं, और जितने हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, डेमोस्ट्रेटर्स हैं, और डिवाइन जो हमारी स्पाइन है, हमारी आत्मा है, जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे सुना और आपसे मुझे कुछ कहने सुनने का मौका मिला, उसके लिए मैं डॉक्टर निशांत सिंह का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ भविष्य में जरूर जुड़ूंगा इन्हीं शब्दों के साथ, ऋषिकेश से, माँ गंगा की ओर से, हिमालय की ओर से, भगवान बद्रीनाथ की ओर से आप सबके दीर्घायु की कामना करता हूं, आपके दीर्घ स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ओम शांति शांति शांति। Om Santi. Thank you, Dr. Joshi, for enriching us. And definitely we'll be in touch in near future so that you can enrich our students and also our parents and teachers. Thank you very much. Over to Tulika ma'am. Yes, Anushka and Siddhi, it was wonderful. It was wonderful period. We could not just match the time. We needed more. Anyways, time stops us, reminding us our next responsibility. So moving ahead, over to Anushka and Siddhi. Thank you, Tulika ma'am. Coming to the end of the celebration of the 7th International Yoga Day, I would request our Honorable Deputy Director, sir, to conclude the program with inspiring words. Thank you, beta. Very yogic good afternoon to each one of you present here in this wonderful program, which is not only a physical exercise, but also the display of art and connection of the science with this all yogic practicing. Dear students, dear viewers, I would only like to draw the attention towards the areas which we have to focus more while celebrating this International Yoga Day, which is a grand event, especially for our country, because this makes possible this yoga has been accepted across the world because of our yogic practitioners, our yogic gurus, and our yogic literatures available with us. The word yoga is derived from the Sanskrit root yoj. It means that to join, to unite. So as per yogic spirituals, the practicing of yoga leads to the union of individuals' consciousness to the
universal consciousness. With that, dear students, you must have seen about the presentations and the things what Dr. Joshi has presented to us, are aware to us that this yoga is not just like a exercise for your physical fitness, but it also connect the purification of mind and body and the heart. As if we talk about the physiology of this whole human structure, then certainly there are three crucial parts, that is its physical structure, its mind and heart, that plays the crucial role in the fitness of any individual. Whenever we talk about the fitness doesn't relate with our physical fitness. As Dr. Joshi has also mentioned, that because of wrong practices, wrong postures, wrong daily routines, wrong habits, we are facing lot of medical issues. If you can just recall the students, those are, I think at present they are in class 12th. So they must be remembered that in 2016, when I was just entered in your physical class, we have asked some students to stand straight, and we have observed that down of the shoulders was found in many of the students. So this all happens because of some areas where we don't focus, or we can say we ignored, or we are not aware about that. So this yoga, don't consider it just like a celebration, and you will be happy to know this fact that this Lord Shiva, we are sitting in the city of God Shiva, and he is known to be as the first yogic guru in the field of this yoga. Yoga is not new for us. Yoga is not only introduced once by our Honorable Prime Minister in United Nations, but it is too old. If you find it in the documentation, so you will find written documents about 5,000 years before. But it should be the part of each and everybody's life. So at the end, at the concluding part of this event, I would like to request to each and every individual watching this particular program, either with this Microsoft team or Facebook, are going to watch in coming future, that let us take an oath for our own fitness, for our own vibrant life, that we must introduce this yoga practices in our daily routine, and that will only be the best way for celebrating the yoga day. And also I would like to congratulate to all the students, those who have participated in Father's Day celebration, and we have got some samples, you can say specimens. Those students, those have presented well today. We are very happy to know the sentiments of the children and their social behavior and their connectivity, their emotions with their family members, especially with the fathers. So thank you very much and have a nice day. Over to MOCs. Thank you, Deputy Director, sir, for your inspiring words. Hope everybody would be following your words of making yoga a regular routine in our life schedule. Coming to the end, just to say goodbye to all, I would like to admit my thoughts that a good event never ends in the world. They take only a pause and keep us waiting for the next. Thank you, Sunbeam Academy, for these precious moments with the precious gems. And I would take the name of Dr. Joshi, who made this day more precious. Thank you for everything. Thank you, the mentors,
for sharing your precious time. I won't stop to thank to all those students, guardians, and the friends who had joined this virtual chapter and made this moment precious. Thank you. Thank you, everybody. हर सुबह एक नई उम्मीद की किरण है, हर सुबह एक नई जंग है। जीतता वही है जिसके अंदर साहस और हिम्मत है। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी हमारे इस आभासी सृजनात्मक कार्यक्रम में का हिस्सा बने और इसे सफल बनाने में सहयोग किया। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।